अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू विल बी फाइन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट जो है आपसे करना चाहूँगी। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस फुल्ली, बिकॉज इफ यू डोंट वॉच फुल वीडियोस you will not learn that purpose which I want from you. Okay? तो हमने कल नेगेटिव के बारे में पढ़ा था और आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिलाकर पढ़ाएंगे। सॉरी, मैंने इससे पहले नेगेटिव पढ़ाया था, इसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ाया था और अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिलाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिलाकर हम सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एंड वी हैव टू फॉर्मुलेट दी सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों इंक्लूड हैं। Alright, so the formula is MR have been used here as helping verb. Then after is MR you will insert subject. After subject not will come because this is a negative sentence, that is why we have to insert here not. And why I have applied is MR at the first, because this is an interrogative sentence as well as. Later on we will apply verb first form, and with verb first form we will insert ing. Why we are applying here ing? Because this is a continuous sentence, that is why we will apply ing. Must remember that with continuous sentences we have to apply ing form. Don't forget to insert ing with the verb first form. Afterwards we will apply object, and after object you have to insert question mark, because this is very necessary, because it is an interrogative sentence. Have you got this point? So we come to Urdu sentences such as क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो? क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो? अब देखें तुम आ रहा है, it means our subject is you. But because it is an interrogative tense, that is why हम जो है सबसे पहले R लिखेंगे। R क्यों लिखेंगे? क्योंकि U के साथ R आता है, इसीलिए आपको R लिखना है। अगर यहाँ ही आता तो आप is लिखते, और अगर यहाँ I आता तो फिर M लिखते। समझ में आ गया? अब R, ठीक है, R है, और R के बाद हम, क्योंकि यहाँ तुम है, that is why we will insert here you. Are you? अब हमारा ये इशू भी सॉल्व हो गया और ये इशू भी सॉल्व हो गया। Now we will come to not, और not को we will write as it is, because this shows negative sentence as well as and after not you have to write verbs first form. चलाना, अब देखिए साउंड आ रहा है चला रहे, and you can see here the present continuous sound is रहा है, रही है and रहे हैं। ठीक है, are you not? drive कहते हैं गाड़ी की, गाड़ी चला रहा है, that is why we will write here drive as a verb. अब drive की स्पेलिंग होती है DRIVE, ठीक है, लेकिन when we insert ing form तो हम ये e को हटा के यहाँ पर ing लगा देंगे and it becomes driving. Are you not driving? अब क्या नहीं चला रहा है? Object is a car, क्योंकि एक गाड़ी चला रहा है, that is why I have inserted here a, and a is an article because it is showing a singular object. So are you not driving a car? It is a sentence and it shows that it's a present continuous tense. Alright? Are you not driving a car? Then we come to second sentence है कि क्या वो अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहा है? मतलब मैं पूछ रही हूँ किसी से कि क्या जो है ये शख्स अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहा है, शायद इसकी शादी होने वाली हो। So how will I make sentence and how I will convert it in according to this formula? क्या वो अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहा है? कर रहा है, it means that person is he. It's a subject. The subject will be he. अब he के साथ क्या आता है? Is आता है,
ठीक है, we will insert first is because it's a helping verb. Is he is subject, afterwards not. Is he not? अच्छा, ऐलान करने को what we say announce. Is he not announcing? अब देखें announce इस तरह आता है, but when we apply ing form then after C I will write ing. Is he not announcing his marriage? Then must insert question mark. Is he not announcing his marriage? क्या वो अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहा है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर she लगाती तो I will write in this way. I am telling you, is she not announcing her marriage? ठीक है, अगर यहाँ I अगर होता तो मैं यहाँ मैं I के साथ क्या लगाती? My लगाती, ठीक है। अब देखें क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। इट इज अ थर्ड सेंटेंस। सॉरी, क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज किए हैं कि यहाँ तुम आ रहा है, यू, फिर ही। अब मैं शी का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू यूज शी हियर एज अ सब्जेक्ट। सो शी के साथ भी हमेशा इज ही आता है। Is she, after she not, is she not। अब अप्लाई करने को अप्लाई करना इंग्लिश में कहते हैं is she not applying। अब अप्लाई की स्पेलिंग वाई होती है। ठीक है, हम यहाँ पर क्योंकि बिकॉज वी हैव टू मेक ing फॉर्म, आई विल एड ing here। Is she not sorry is she not with y, is she not applying, y will come here and with y we will apply ing form। is she not applying for, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पोस्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के लिए, तो मैं कहूंगी फॉर दिस पोस्ट। is she not applying for this post। I am questioning someone कि is she not applying for this post। The fourth sentence is क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। Must remember one thing कि तारीफ करने को कहते हैं admire। ठीक है, आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इसको admire किया, यानी कि मैंने इसकी तारीफ की। तो क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा है और मैं के साथ am आएगा और M के बाद I आएगा। मेरी बात हो रही है। am I not, M हो गया, I then not। तारीफ करने को what we say admire। I have told you, am I not admire, ADMIRING, admiring। am I not admiring you, क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर है क्या आलिया और अली तुम्हारी पेशकश या तजवीज़। आप यहाँ पेशकश को तजवीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस इज एन एडिशनल वोकैबुलरी। क्या आलिया और अली तुम्हारी पेशकश से मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं, या क्या आलिया और अली तुम्हारी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं। तो हाउ आई विल मेक दिस सेंटेंस, क्योंकि आलिया और अली आर मोर देन वन नेम, यानी कि आलिया और अली जो हैं एक से ज़्यादा नेम्स हैं। सो आई विल राइट हियर आलिया एंड अली। मस्ट राइट फर्स्ट लेटर of any name in capital letter। ठीक है, आपको कैपिटल में लिखना है क्योंकि यहाँ हम नाम लिख रहे हैं किसी का। आलिया एंड अली, सॉरी, आर will come first, आलिया एंड अली।
ठीक है, आर हो गया सॉल्व। इसके बाद हमने आलिया एंड अली सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लिया। देन वी विल अप्लाई नॉट, आर आलिया एंड अली नॉट। ठीक है, तजवीज़ से मुत्तफिक होने को कहते हैं अग्री विद प्रपोजल। ठीक है, आप याद रखिएगा कि तजवीज़ से मुत्तफिक होने को कहते हैं अग्री विद प्रपोजल। तो लेकिन यहाँ पर तो हमें आप देख रहे हैं कि वी हैव टू अप्लाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो हम यहाँ अग्रींग करेंगे। आर वी नॉट, आर आलिया एंड अली नॉट अग्रींग विद, अब किसकी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हो रहे, तुम्हारी, विद योर प्रपोजल, प्रपोजल। Alright, question mark. Don't forget to insert question mark because this is the part of punctuation, and the good learning also adds punctuation as well as. So I'm repeating the sentences for you. क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो? Are you can see here. Then you is subject. Then not, then driving, drive and ing form, and object is a car. Are you not driving the car? अच्छा, क्या वो अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहा है? Is according to formula because this is an interrogative sentence. Is, then subject is he, then according to formula not. Are you noticing this? I am trying to show you. Then announce is ऐलान करना with ing form, और marriage is an object क्योंकि वो उसकी अपनी मैरिज की बात हो रही है ही की, तो his we will apply here। ठीक है, लाइकवाइज क्या वो इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रही है? अब इस, क्योंकि शी के साथ इस आता है, दैट इज वाई आई हैव रिटन इज फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन अप्लाइंग विद आईएनजी फॉर्म, एंड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रही है क्या वो? फिर है क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ? अब इसमें जो है, अब आई एम होता है, तो चूंकि सवाल है तो हम एम आई करेंगे। एम आई नॉट एडमायरिंग यू, देन क्वेश्चन मार्क। फिर है फिफ्थ है क्या आलिया और अली तुम्हारी पेशकश से मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं? अब देखें, मैंने आपको एक अलग चीज़ बताई है कि अग्री विद प्रपोजल कहते हैं किसी भी तजवीज़ या किसी की बात से मुत्तफिक होना, यानी कि आप किसी की बात मान रहे हैं कि ये बंदा ये बात सही कह रहा है। ठीक है, आप मुत्तफिक हो रहे हैं किसी की बात से, तो आप कहेंगे आर आलिया एंड अली नॉट अग्रीइंग विद योर प्रपोजल। अग्री विद प्रपोजल, किसी की बात से मुत्तफिक होना। I hope so you like my video, and if you have any issue then must give your opinion in my comment box. I will be waiting for you, and don't forget to subscribe my video। और तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।